morning, my dear students. I am your Obs and Gynae faculty. Today we are going to discuss a very interesting and very important topic, which is fertilization. So let's start with fertilization. So what is fertilization? In simple words, if we say fertilization is the fusion of female and male gametes. Yes, this is the fusion of male and female gametes. And what are the male and female gametes? Male and female gametes are the female gamete क्या है ova and male gamete क्या है हमारा sperm. Yes, the fusion of male and female gamete. And if I say about the definition of fertilization, it is the coordinated and cellular process of the intermingling of male and female chromosomes at first meiotic division of the zygote. ये क्या है? It is a coordinated and cellular process है of the intermingling of chromosomes of male and female. ठीक है? So if I write here the definition of fertilization, it is a coordinated and cellular process which begins with the intermingling of maternal and paternal chromosomes at metaphase of first mitotic division of zygote. First mitotic division of zygote. Okay, so this is the coordinated and cellular process of intermingling of maternal and paternal chromosomes. ठीक है? Understood about the definition of fertilization. Now you tell me, what is the most common site of the fertilization? What is the most common site for fertilization? So most common site of fertilization is ampulla. And what is ampulla? Ampulla is the part of fallopian tube. Yes? Will you tell me about the other parts of the fallopian tube? So what are the other parts of fallopian tube? There are 4 parts of fallopian tube. Infundibulum. This is infundibulum. Yes, this is the ampulla part, which we will discuss further in the process of fertilization. Next is the isthmus. And next one is the interstitial. So these are the 4 parts of the fallopian tube.
सो कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन? एट द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, एट द एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन हैज अकर. ओके, सो अब जब फर्टिलाइजेशन एम्पुला पार्ट पर हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओवम और स्पर्म के फ्यूजन के साथ में. दोनों चीज़ें हमें चाहिए, ओवम भी चाहिए और स्पर्म भी चाहिए. और कहाँ पर चाहिए हमको? एम्पुला में चाहिए. कहाँ पर चाहिए? एम्पुला में चाहिए. यस, तो अब दोनों को कहाँ पहुँचना है? द ओवा एंड स्पर्म हैज़ टू रीच टुवर्ड्स द एम्पुला. एम्पुला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ एम्पुला पार्ट में. फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? एम्पुला पार्ट में हो रहा है. तो ओवा को और स्पर्म को दोनों को ही कहाँ पहुँचना है? एम्पुला पार्ट में पहुँचना है. ठीक है, दिस इज ओवा, दिस इज स्पर्म. यस, सो दोनों को कहाँ पहुँचना है? एम्पुला पार्ट में पहुँचना है. सो फॉर before talking about the main fusion, before talking about the main fertilization, I want to discuss with you this movement, this transportation of the ova towards the ampulla and transportation of the sperm from the vagina towards the ampulla. Okay, so let's discuss in detail how it takes place, how the transportation of ova and sperm takes place. Okay, yes. So first we will discuss about the ovum transportation. Ovum transportation. ओवम ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या है? द रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. ओव्यूलेशन की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इन प्रीवियस क्लासेस. So ovulation is the release of ova from the mature Graafian follicle. So क्या होता है? ओवम क्या है? एक इमोटाइल सेल है. Yes or no? Ovum is a immotile cell. Ovum is a immotile cell. And sperm is a, sperm कैसा है? Is a highly motile cell. Is a highly motile cell. तो sperm तो खुद ही आगे मूवमेंट करेगा, बट ओवम को मूवमेंट कराने के लिए देयर आर सम मैकेनिज्म. ओके, सो ओवम क्या करता है? एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है दैट विल रप्चर एंड फिम्ब्रे ऑफ द इनफंडिबुलम. फिम्ब्रेज क्या है? फिम्ब्रेज दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन द इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको हम? फिम्ब्रेज. फिम्ब्रे बोलते हैं. सो दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनफंडिबुलम पार्ट कॉल्ड द फिम्ब्रे. तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, उससे ओवम रिलीज होता है. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये उसको पिकअप करते हैं एंड आगे प्रोपेल करते हैं टुवर्ड्स द एम्पुला पार्ट. अभी प्रोसेस कैसे होता है? सो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, yes, at the time of ovulation there is sudden increase of LH and FSH, या फिर हम बोल सकते हैं LH सर्ज होगा. बिकॉज ऑफ दैट LH surge, as soon as the follicular cells, the Graafian follicle will rupture and ovum will release
विद, किसके साथ में रिलीज होगा? विद follicular cells, follicular cells and some fluid, and some fluid. अब ये जो follicular cells हैं बेटा, ये follicular cells कैसी होती हैं? These are radially arranged, ये rearranged cells होती हैं, rearranged cells होती हैं around the ovum, और इन rearranged cells को हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा. Okay, understood? So at the time of ovulation there will be sudden LH surge. Because of that there will be the rupture of Graafian follicle, and Graafian follicle से हमारा ovum release होगा with some fluid and some follicular cells. These follicular cells are rearranged around the oocyte or around the ovum. If I say here, ये हमारा ovum है, ठीक है, ये हमारा ovum है, इसके चारों तरफ ये हमारी जोना पैलिसिडा लेयर है, और उसके चारों तरफ हमारी ये रीअरेंज सेल्स हैं. ये क्या है? हमारी कोरोना रेडिएटा. इनको हम क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा बोलेंगे. ठीक है. और साथ में क्या रिलीज होता है? जोना पैलिसिडा along with अ ग्लाइकोप्रोटीन, एक ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ओवम या oocyte रिलीज करता है, दैट इज जोना पैलिसिडा लेयर. वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जोना पैलिसिडा लेयर को बनाती है. along with अ ग्लाइकोप्रोटीन that is zona pellucida layer. Zona pellucida layer. Okay, understood this much? Okay, क्या हुआ कि at the time of ovulation there is the sudden LH surge, Graafian follicle will rupture and ovum will release with some follicular cells and some fluid. Also along with the glycoprotein, that is the zona pellucida layer. Okay, now come to the next. अब at the time of ovulation जो फिम्ब्रेज हैं इन्फंडिबुलम पार्ट में, they will become very active because of the hormonal activity in the body. हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से जो इन्फंडिबुलम में फिम्ब्रेज प्रेजेंट हैं, they will become very active because sometimes what happens with us कि हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ हैपनिंग हमारे साथ होने वाला होता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. लाइकवाइज ये जो इन्फंडिबुलम के जो फिम्ब्रेज हैं, वो क्योंकि ओव्यूलेशन होने वाला है, ओवम रिलीज होने वाला है, तो ये क्या हो जाएंगे? वेरी एक्टिव. दे विल वेरी एक्टिव टू पिक अप दी ओवम. ओके, सो ड्यू टू हार्मोनल एक्टिविटी fimbriae of infundibulum part become very active. Very active. और जब ये एक्टिव हो जाते हैं, then what they will do, they will start the sweeping around the ovary. ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? स्वीपिंग अराउंड द ओवरी स्टार्ट कर देते हैं. become very active and will start sweeping around ovaries. Around ovaries.
ओवरीज, ठीक है। जैसे ही हार्मोनल एक्टिविटी हुई, द फिम्ब्रेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विल वेरी active, they will become more active and they will start sweeping around the ovaries to pick up the ovum. किस लिए हो जाएंगे? To pick up the ovum, to pick up the ovum. Yes, okay. अब ओवम क्या है हमारा? इमोटाइल है, इमोटाइल है तो इन्होंने पिकअप तो कर लिया, उसको ले लिया, लेकिन अब आगे भी तो बढ़ना है. इट हैज़ टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एम्पुला. सो अब ये फर्दर मूवमेंट के लिए क्या प्रोसेस होता है? देयर आर टू कॉमन मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ ओवम. फर्स्ट वन इज द स्वीपिंग, फर्स्ट वन इज द स्वीपिंग ऑफ फिम्ब्रेज, स्वीपिंग ऑफ फिम्ब्रे, and next one is the and second one is the presence of cilias, presence of cilias. ये जो cilias हैं, इनफंडिबुलम में ही cilia प्रेजेंट होते हैं. they will release some small fluid currents which also help in picking up the ovum. ठीक है, ये जो cilias प्रेजेंट हैं, ciliated cells प्रेजेंट हैं within the fimbriae, within fimbriae, these cells will secrete, these cells will secrete some fluid currents, and it also helps in picking up the ovum. Picking up the ovum. Okay, समझ आया? How the ovum will travel, how the ovum will pick up from the ovary towards the fallopian tube. तो जो हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से जो फिम्ब्रेज है इनफंडिबुलम के, दे विल बिकम वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे. ठीक है, फॉर स्टार्ट स्वीपिंग, स्वीपिंग करेंगे अराउंड दी ओवरीज, ओवरीज के चारों तरफ, एंड दे विल पिक अप दी ओवम फ्रॉम द ओवरी. ऑल्सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सीलिया विद इन द इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम में जो सीलिएटेड सेल्स हैं उन वो क्या करती हैं? दे विल रिलीज सम फ्लूइड currents and it will also help in picking up the ovum. Okay, this much understood? Okay, so next is, now after picking up, the ovum has to move forward. Yes, क्योंकि एम्पुला तक पहुंचना है. अभी तो इसको सिर्फ पिकअप किया है ओवरी से, है ना, अभी सिर्फ इसको पिकअप किया है ओवरी से. अब हमें आगे मूवमेंट कराना है. तो आगे मूवमेंट के लिए क्या होता है? जो सेकेंडरी ओवम है, बिफोर दैट यू टेल मी दिस सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte जो है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक यहाँ पर सेकेंडरी oocyte ही था, है ना, क्योंकि हमने जब प्रोसेस पढ़ा था oogenesis का, उस टाइम पर हमने इसको सेकेंडरी oocyte पर छोड़ दिया था. ठीक है, वहाँ पर क्या होना था हमारा, और आगे माइटोटिक डिवीज़न होना था, बट सेकेंडरी oocyte तक, क्योंकि वहाँ पर हमें स्पर्म नहीं मिला था हमारी ओवरीज में, मतलब हमारे oocyte को स्पर्म नहीं मिला था, इसलिए हमने इसको वहीं तक प्रोसेस को छोड़ दिया था, हॉल्ट हो गया था प्रोसेस हमारा. ठीक है, तो ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है ग्रेफियन फॉलिकल से. यस, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, हाउ मच इट सर्वाइव, यहाँ से पिकअप तो हो गया, रिलीज हो गया, अब ये कितना सर्वाइव करेगा? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ oocyte, secondary oocyte? What is the life span of this oocyte, secondary oocyte? It is hardly 1 to 2 days, means hardly 24 hours it survive. इसीलिए the process of fertilization is within the 24 hours after the ovulation. Okay, yes, so अब क्या हुआ? Now it will wait for the sperm. Okay, यहाँ पर रिलीज हो गया. Now it will wait for the sperm. If sperm is present around the
ovum, it will do the next process. If the sperm is not present around the ovum, it will dissolve. ठीक है, क्या हो जाएगा, dissolve हो जाएगा inside the reproductive tract of the female. Okay, so अगर यहाँ पर और now you tell me what is the life span of sperm. स्पर्म का लाइफ स्पैन क्या होता है, इट इज अराउंड 48 आवर्स. इट इज अराउंड 48 आवर्स. ठीक है, तो अब स्पर्म अगर मिलता है तो आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है. आगे क्या प्रोसेस होगा, देन इट विल मूव लिटिल in fallopian tube towards ampulla, and for this movement what is the mechanism, इस movement के लिए क्या mechanism आएगा, what is the mechanism for this movement. वहाँ पर तो ciliated cells ने move कराया था और फिम्ब्रेज ने move कराया था. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है contraction and relaxation inside the uterine tube, and the process of contraction and relaxation is called the peristaltic movement. Movement of fallopian tube. जब पिकअप हो गया हमारा ओवम, आगे उसको फर्दर मूवमेंट करना है तो आगे कौन हेल्प करता है, फैलोपियन ट्यूब इटसेल्फ विल हेल्प. ये क्या करेगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेगी. एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द cells inside the fallopian tube. ठीक है, तो this is called the peristaltic movement. So through the peristaltic movement the ovum will further move towards the ampulla part. अब हमारा ओवम जो है, जो इमोटाइल सेल था, ये हमने एम्पुला तक पहुंचा दिया है. Now we will discuss about the movement of the sperm. Okay, so let's proceed with movement of sperm. Sperm movement. Now you tell me, how many sperms are deposited in the vagina of female during one ejaculation? So it is approx 200 to 500 million sperms are deposited during one ejaculation in the vagina of the female. It is approx 200 to 500 millions which are deposited on one ejaculation. And I want to tell you that from the semen only 10% of the mass of semen is made by the sperms, and 90% is the content of some fluids which are released by the seminal vesicles, or we can say from the prostate glands and other fluids. Okay, so only 10% of semen, 10% of mass of semen made by sperms, and another 90% is made by fluids which are released by some seminal vesicles, prostate gland, and other fluids. Okay, and other fluids.
ये तो बात हुई सीमेन की. नेक्स्ट थिंग इज next thing is why the sperms when after the ejaculation, why the sperms are remain in the vagina and they are not falling down? What do you think about it? So why the sperms are always remain in the vagina after the ejaculation and they are not drain out? So there is one enzyme which secreted along with the semen and it activated in the vagina. पहले से एक्टिवेटेड नहीं होता है, इट एक्टिवेट्स इन दी वजाइना एंड इट हेल्प टू coagulate the semen in the vagina, which helps in not drain out, which helps in prevention of the falling of sperms after the ejaculation, and it released from the seminal vesicle. It released from the seminal vesicle. Okay, so there is an enzyme. There is an enzyme which release along with the semen and it activates in vagina and also helps to coagulate the semen to coagulate the semen which helps to does not drain out of the sperms and remain stick in the cervix and okay, and it is released from, ये कहाँ से रिलीज होता है? released from seminal vesicle. And its name is वेस्कुलर एंजाइम. ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकुलर एंजाइम या वेसिकुलेस एंजाइम. ओके, अंडरस्टूड दिस मच? इसका क्या फंक्शन है? ये म्यूकोइड कोगुलेट करता है सीमेन को, जिससे कि स्पर्म्स क्या रहते हैं? स्टिकी रहते हैं ऑन द cervix. Okay, sperms and remain stick on the cervix and it helps to coagulate, right? Now one more question is there, that sperms are more motile in vagina or in the uterus? I want to know from your side that the sperms are more motile in the vagina or in the uterus. So vagina has, you know, I hope that vagina has the acidic nature. vagina का क्या होता है? acidic nature होता है and it slows down the sperms. Okay, sperms की motility को ये slow down करता है. acidic क्यों होता है? Because of the presence of lactobacillus and it prevent some kind of the infections. Okay, so vagina का जो nature है, vagina का जो environment है, that is acidic in nature and which slows down the motility of the sperms. While in uterus में क्या होता है? uterus has the alkaline nature. uterus का nature कैसा है? It has the alkaline nature and when the sperms reach from the cervix
to the uterus, to the warm uterus, their motility increases. ठीक है, वार्म यूट्रस में पहुंचते ही उनकी मोटिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन नेचर ऑफ द यूट्रस. ओके, सो मोटिलिटी की अगर हम बात करें, वजाइना हैज़ द एसिडिक नेचर. वजाइना का कैसा है, एसिडिक नेचर है, एसिडिक एनवायरनमेंट है. एंड यूट्रस का कैसा है, यूट्रस का एल्कलाइन एनवायरनमेंट है. यस, एल्कलाइन एनवायरनमेंट. यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है स्पर्म की मोटिलिटी. ओके, एंड एल्कलाइन नेचर है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मोर एक्टिव हो जाते हैं स्पर्म्स, सुपर एक्टिव वी कैन से. ओके, सो दे आर वेरी क्लेवर, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं. दे विल डायरेक्टली जम्प, sperms will rapidly jump to the uterus. Okay, they will directly jump to the uterus due to the alkaline nature of the uterus. They will increase their motility. Now come to the next thing. Motility and most important thing is at the time of ovulation, vagina release some mucus. ठीक है, mucoid material release करती है, जो क्या होता है, it becomes very thin, less viscous and most abundant हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो favors the motility of the sperm. ठीक है, sperm की motility में increase करता है. ठीक, तो another thing is around the ovulation, करना, when the ovum reach here, somewhere here around the ovulation, vagina release some mucoid material, which is mucus. Mucus release करती है, it becomes. तो कैसे कहाँ से इसका presence of some glands, from the glands present in कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ये सर्विक्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सर्विक्स. बार्थलिन ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स हैं ये, बार्थलिन ग्लैंड्स हैं. ठीक है, Bartholin glands. Okay, so which become, अब ये जो म्यूकस होता है which become thin हो जाएगा, which become thin, string, जी less viscous and most abundant हो जाता है around the time of the ovulation. Okay, and this is good for the, this is good for sperms. This is
good for sperms, which favors the movement, which favors the movement. Which favors the movement. Along with this mucus, there is one tail of the sperm. Sperm की tail भी होती है. Yes, sperm moves with its tail. With its tail. तो tail में क्या होते हैं? Movement होते हैं. Propulsion movements होते हैं. कौन से movements होते हैं? Propulsion movement होते हैं by the tail of the sperm, and which help the sperm to move forward. Okay, and it will go from the vagina through the cervical canal to the uterus. ठीक है, from vagina through the cervical canal towards the uterus. Okay, अब ये जो हमारे स्पर्म्स थे, बिकॉज ऑफ द alkaline nature, because of the mucous material from the vagina, thin, stringy and most abundant, and with the movement of the tail, the cervix will reach from the vagina through the cervical canal, will reach towards the uterus. Okay, और uterus में जाके they will become more active, they will become more motile. Next thing is, come to the next thing. अब इतना काम कर रहे हैं, स्पर्म्स मूव कर रहे हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ लॉन्ग वे. उसके लिए उनको एनर्जी भी चाहिए, बिकॉज जब हम काम करते हैं हमें एनर्जी मिलती है. वी हैव फूड टू टेक एनर्जी. तो ये स्पर्म्स को कहाँ से एनर्जी मिल रही है? दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फ्रक्टोज. अब ये फ्रक्टोज कहाँ से आ रहा है? फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन दी सीमन. ओके, फ्रक्टोज किस में प्रेजेंट है? सीमन में प्रेजेंट है. सीमन हैज द फ्रक्टोज कंटेंट, and the sperm will take this fructose and it will convert into energy, and they will take the energy for the movement. Okay, so fructose, semen has the to move forward sperms needed energy, so they will get from fructose, which is present in the semen, which is present in the semen, so they will get the energy. अब out of 500 million fertilization के लिए हमें कितने स्पर्म चाहिए? Only one sperm we needed usually for the fertilization. ठीक है, तो 500 में से बहुत सारे स्पर्म्स क्या होते हैं? दे ट्रेवल किए, यूट्रस तक ट्रेवल किए, एंड कुछ इधर फैलोपियन ट्यूब में चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ वहाँ चले गए. दे डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, दे डोंट नो द एग्जैक्ट वे. ओके, तो जो अदर स्पर्म्स होते हैं, वेयर दे गॉन, वो कहाँ चले गए? दे विल डिसइंटीग्रेट. वो क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, एंड दे विल एब्जॉर्ब्ड बाय द म्यूकोसा ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल. ठीक है, अब कुछ स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच गए, दे रीच हियर. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? दे विल स्टॉप. यहाँ पे आकर भी वो स्टॉप हो जाते हैं. अब यहाँ से आगे जाने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है? फ्रॉम हियर
ओके, सो फ्रॉम हेयर यहाँ से क्या कर रहा है हमारा ओवम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवम रिलीज हुआ था विथ सम फ्लूइड एंड द कोरोना रेडिएटा सेल्स, ठीक है, कोरोना रेडिएटा सेल्स के साथ में जब ये रिलीज हुआ था तो जब स्पर्म यहाँ पर पहुँचते हैं एंड दे विल स्टॉप हेयर टू रीस्टार्ट ओवम एंड कोरोना रेडिएटा सेल्स, कोरोना रेडिएटा cells will secrete some chemoattractants, chemoattractants. ओके, जब स्पर्म्स यहाँ पर पहुँच गए एंड यू ओव्यूलेशन के टाइम पे जो हमारा ओवम है वो यहाँ पहुँचा है विद द कोरोना रेडिएटा सेल्स, सो some corona radiata cells and ovum will release some chemoattractants and the sperm will sense them. Sperm क्या करेंगे, उनको sense करेंगे, sense them and they will restart the movement. और वो क्या करते हैं फिर अपना movement दोबारा से restart करते हैं, restart the movement, restart the movement rapidly, ठीक है. नाउ दे विल रीच टूवर्ड्स द ओवम, ठीक है. क्या था कि स्पर्म्स को इससे पहले जो हमारा वेजाइना था वो म्यूकस रिलीज कर रहा था फ्रॉम द बार्थोलिन ग्लैंड्स, इट बिकम द थिन एंड मोस्ट अबंडेंट, इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ द sperms from the vagina towards the uterus. Also the sperms will taking the movement from their tail, ठीक है. तो यूट्रस से होते हुए सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में पहुंच रहा था. अब यूट्रस में पहुंचने के लिए they were getting the energy from the fructose of the semen. Also the uterus has the smooth muscles of uterus and fallopian tube, ठीक है. स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस, इनमें क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे. कॉन्ट्रैक्शंस क्या करते हैं, आगे की तरफ स्पर्म को मूव करते हैं, प्रोपेल एक्शन, ठीक है. कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस वर हेल्पिंग द स्पर्म्स टू मूव फॉरवर्ड. ओके, उसके बाद जब हमारा ओवम पहुंच जाता है एट द इंटरस्टिशियल पार्ट, दे स्टॉप हेयर, स्टॉप हो जाते हैं. टू रीस्टार्ट the corona radiata and the ovum release some chemoattractants and the sperms will sense them and they will restart the movement and reach towards the ovum, okay, reach towards the ovum for the fertilization, or we can say at the site of the fertilization, that is ampulla part. Now come to the most important thing, which is before the fertilization, now the main part has started, fertilization, okay. So this was all about the movement of ovum and movement of the sperm. Now come to the fertilization. So before the exact process of fertilization, the sperm has undergone two important reactions, ठीक है. two important reactions कौन सी होती हैं, they are, one is the capacitation reaction, and next is the acrosome reaction, okay. So before the process of fertilization, the sperm has undergone two important reactions. One is the capacitation reaction and next is the acrosome reaction, okay. So capacitation reaction,
Capacitation reaction means it is a special type of conditioning of the sperm जस्ट बिफोर दी फर्टिलाइजेशन. एक स्पेशल टाइप की कंडीशनिंग होती है स्पर्म में. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द स्पर्म विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. कहाँ होगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगी. एंड इट टेक्स अबाउट 7 hours. इट टेक्स अबाउट द टाइम 7 hours. चाहे जो हमारा स्पर्म होता है इट टेक्स 5 minutes to reach from this vagina through the cervix, uterine cavity and fallopian tube. इसमें चाहे वो बहुत कम टाइम लगे, इवन 5 minutes का टाइम लगे, बट अगर कैपेसिटेशन रिएक्शन नहीं हुआ है स्पर्म में, इट कैन नॉट फर्टिलाइज दी ovum. Okay, it cannot fertilize the ovum immediately. So it is very necessary to undergone कैपेसिटेशन रिएक्शन. ठीक है. और अब इस कैपेसिटेशन रिएक्शन में होता क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनिंग. स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनिंग. ठीक है. एंड इट टेक्स टाइम 7 hours. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? What happens here? On the head side of the sperm, it has the double membrane. जो sperm होता है head side, for example, ये हमारा sperm है, ये इसका middle piece है, and ये इसकी tail है. ठीक है. Okay, this is middle piece. This is head and this is tail. Right? Okay. So जो हमारा sperm है on the head side it has a double membrane and that is the plasma membrane. क्या होती है ये? Plasma membrane होती है और एक acrosome membrane होती है. This is acrosome membrane. Acrosome membrane. Next one is the plasma membrane. Next one is the plasma membrane. साथ में और क्या प्रेजेंट होता है? There are some glycoproteins. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारी glycoproteins भी प्रेजेंट होती हैं. These are the glycoproteins. These are the glycoproteins. Okay. So जो हमारा sperm है on the head side it has a double membrane. One is the plasma membrane. Second one is the acrosome membrane and there is a lot of glycoproteins are present there. Okay. So it has to wash its head. अब उसको क्या करना है? कैपेसिटेशन करना है. ठीक है. तो it has to wash its head before it is greeting by the ovum. Ovum के पास जा रहा है. Ovum will greet it. तो before greeting it has to wash his head and the washing of this head of the sperm is called the capacitation. Okay. In general terms if we say the washing of the head of sperm is called the capacitation. So the changes undergone by the sperms in the female reproductive tract that enables them to penetrate and fertilize the egg is called the capacitation. ठीक है. मीन्स स्पर्म को इस लायक बनाना कि वो ओवम को पेनिट्रेट कर पाए इज कॉल्ड दी कैपेसिटेशन. ओके. Okay, I will write here the changes undergone by the sperm in the female reproductive tract. In the female reproductive
reproductive tract, and that changes enables the sperm to penetrate and fertilize the egg. These changes enables the sperm to penetrate and fertilize the egg. Understood the process of capacitation? Okay, so head washing is called the capacitation because head is loaded by the lots of glycoprotein. अब इस washing में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो glycoproteins आपके present हैं they are washed out. ठीक है, इन glycoproteins को क्या कर रहे हैं, हम remove कर रहे हैं, because अगर जब तक ये glycoproteins remove नहीं होंगे the sperm cannot fertilize the ovum. Okay, understood the process of capacitation? अब ये प्रोसेस तो हुआ, एंड हाउ इट अकर्स, ये कैपेसिटेशन हो कैसे रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हाउ द कैपेसिटेशन अकर्स. Okay, so when the head of the sperm interact with the mucosal lining of the female reproductive tract, it secretes some of the enzymes which remove the coating of the glycoprotein from the sperm surface and expose the receptor site that are essential for the acrosome reaction. First क्या थी हमारी कैपेसिटेशन रिएक्शन, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. बिफोर फर्टिलाइजेशन स्पर्म अंडरगॉन टू रिएक्शंस, acrosome reaction and capacitation reaction. So here we are discussing about the capacitation reaction. ठीक है, तो capacitation reaction कैसे हो रहा है, जब स्पर्म क्या करता है, मूव करता है इन द जेनाइटल ट्रैक्ट और इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट इंटरैक्ट विद दैम. ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग से इंटरैक्ट करता है, इधर उधर टच होता है, तो उससे क्या होता है, कुछ सिक्रीशंस होते हैं. ठीक है, कुछ सिक्रीशंस होते हैं इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, और वो जो सिक्रीशंस हैं जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो गया, कुछ लाइपोप्रोटीन्स हो गई, ये सब क्या करते हैं, दे आर हेल्पिंग इन रिमूवल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म. दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेशन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड द कैपेसिटेशन रिएक्शन. ठीक है, सो व्हेन sperm pass through the female reproductive tract, they secrete, क्या secrete करते हैं, they secrete some enzymes secrete करते हैं that will help in removal of glycoprotein covering or coating from the head of the sperm. Understood this much? Okay, कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या होता है, द वॉशिंग ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन से उनको रिमूव किया जा रहा है. ठीक है, देयर इज टू मेम्ब्रेन्स, एक्रोसोम मेम्ब्रेन एंड हियर वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट अ मिनट,
here we have discussed ना, one is the acrosome membrane and one is the plasma membrane, ठीक है, and also there are some glycoproteins are also present. Yes, you can see here glycoproteins are also present. So removal of these glycoproteins is called the capacitation, ठीक है. और कैसे हो रहा है, how it occurs, how it's happening, when the sperm is moving forward through the reproductive tract of the female, there are some enzymes, and when it interact with the mucosal lining of the female reproductive organs, it will secrete some enzymes like lipoproteins, and those enzymes will help in the removal of these glycoproteins. ठीक है. तो ये क्या हो गई हमारी capacitation reaction is completed. Okay. Okay. Next we will move towards that after that when the sperm is capacitated, now the ovum is waiting. ठीक है, ovum क्या कर रहा है, wait कर रहा है with the corona radiata cells with the zona pellucida layer. Okay, so corona radiata cells are held together by some connective tissues and having some hyaluronic acid. ठीक है, for I will show here, this is the ovum. Okay, एंड ओवम के पास क्या है, एक जोना पेलुसिडा लेयर है. ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, कोरोना रेडिएटा सेल्स प्रेजेंट है, एंड दीज कोरोना रेडिएटा सेल्स आर अरेंज्ड विथ सम कनेक्टिव टिश्यूज. और यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइलुरोनिक एसिड. ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द सम कनेक्टिव टिश्यूज एंड हाइलुरोनिक एसिड. Okay, so once the sperm is capacitated and it will pass easily through the corona radiata cells. ठीक है, मीन्स क्या होगा, जैसे ही हमारा स्पर्म कैपेसिटेट हुआ, ये जो कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगी बेटा, डिसोल्यूट हो जाएंगे. ये क्या हो जाएंगे, डिसोल्यूट हो जाएंगे. डिसोल्यूशन ऑफ द सेल हो जाएगा और हमारा स्पर्म कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर. ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर. ओके, सो वंस द स्पर्म इज कैपेसिटेटेड, द कोरोना, इट विल पास इजिली फ्रॉम द कोरोना रेडिएटा सेल्स. इट कैन पास इजिली. ये जितनी भी हमारी कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं ये डिसोल्यूट हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, स्पेस दे देंगी स्पर्म को आगे जाने के लिए. ठीक है, एंड now as soon as it touches the zona pellucida it undergone another reaction. अब जैसे ही हमारा स्पर्म, इसके बाद कोरोना रेडिएटा के बाद क्या है, हमारी जोना पेलुसिडा लेयर है. राइट, जोना पेलुसिडा लेयर है. तो जैसे ही ये जोना पेलुसिडा को टच करेगा it will undergo another reaction, and that reaction क्या है, it will undergo another reaction means फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जोना पेलुसिडा है, जैसे ही इसने टच किया, ये स्पर्म है, जैसे ही इसने जोना पेलुसिडा को टच किया, जोना पेलुसिडा क्या करेगी, इंड्यूस करेगी रिएक्शन. यहाँ पे जोना पेलुसिडा रिएक्शन को इंड्यूस करेगी. ठीक है, टू द एक्रोसोम. सो दिस इज द एक्रोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म. एक्रोसोम ही टच कर रहा है ना जोना पेलुसिडा से. यस, so when जैसे ही as soon as sperm will touch the zona pellucida, it undergoes another reaction, and this reaction will be induced by the zona pellucida layer. Okay, and this reaction will be किस पे होगी, एक्रोसोम पर होगी. किस पर होगी, एक्रोसोम पर होगी. और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्रोसोम रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोम रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है, so during this process the inner membrane and the outer membrane of sperm
विल फ्यूज एट मल्टीपल पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पर, इसको मैं दोबारा से बनाती हूँ। ये हमारा स्पर्म है, ये इसकी डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, हेड पर, ठीक। अब जैसे ही एक्रोसोम रिएक्शन होगी तो इस एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होगा, जो इनर मेम्ब्रेन है और जो आउटर मेम्ब्रेन है इट विल फ्यूज। ये क्या होगी, फ्यूज होगी एट मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है। एंड व्हेन दे फ्यूज एट द मल्टीपल पॉइंट्स दे विल मेल्ट अवे, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएगी मल्टीपल पॉइंट्स पर, ठीक है। और उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन्स हैं दे विल मेल्ट अवे, ये मेल्ट अवे हो जाएंगी। नाउ इट विल स्टार्ट रिलीजिंग एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होंगे, कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि हमारी ज़ोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये मेम्ब्रेन्स फ्यूज हुई, मेम्ब्रेन्स फ्यूज हुई, जैसे ये हमारी मेम्ब्रेन्स फ्यूज हुई, okay, so as soon as the sperm dissolve its head, as soon as there is the fusion of, there is the fusion of two membranes of sperm, that is the acrosome membrane and plasma membrane, they will start to release enzyme and it will help to digest the zona pellucida. Okay, so what are these enzymes? These are the acrosane. One is the acrosane enzyme. Second one is the trypsin-like substance. Trypsin-like substance. And third one is the hyaluronidase. Third one is the hyaluronidase. So these are the enzymes which release when the fusion of these two membranes of sperm occur. Okay, so these enzymes work together and help in the fusion of zona pellucida, help in the dissolution of the zona pellucida. So during this process sperms lost his head. स्पर्म ने क्या किया, अब अपने हेड की सरफेस को लूज कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पूरा हेड सरफेस लूज हो जाएगा। नाउ दिस स्पर्म वांट टू फ्यूज दी ओवम। अब ये स्पर्म क्या करना चाहता है, ओवम को फ्यूज करना चाहता है। सो एट दिस प्रोसेस मैनी स्पर्म्स आर कमिंग हेयर, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं यहाँ पे जोना पेलुसिडा को या एंटर करने के लिए भी, वी कैन से टू एंटर इनसाइड एंड टू वांट टू फ्यूज दी ओवम, बट ओनली वन ओवम विल फ्यूज दी ओवम, ठीक है। क्योंकि एक ही, यूजुअली हमें एक ही स्पर्म चाहिए ना फ्यूज फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जोना पेलुसिडा यहाँ पे क्या करती है, as soon as the sperm membrane will touches the ovum membrane, means एक स्पर्म हमारा यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, कोरोना रेडिएटा सेल्स को साइड किया एंड इट एंटर्स हेयर, इट रीचेस हेयर, यहाँ पर ये पहुँच गया है। अब जैसे ही स्पर्म की मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ से हेड क्या हो गया, अभी लूज हो गया है, यहाँ से हेड अभी लूज हो गया है, सिर्फ ये मेम्ब्रेन बची है ना। तो जैसे ही स्पर्म की मेम्ब्रेन टच करेगी ओवम की मेम्ब्रेन को, एज सून एज द sperm membrane will touches the ovum membrane, the zona pellucida क्या करेगी, it zona pellucida there are some specific receptor site for the attachment of the sperm। जो zona pellucida है वो क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो ओवम है हमारा, जैसे ही टच किया स्पर्म की मेम्ब्रेन ने ओवम की मेम्ब्रेन को, ये अपने कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगी। कौन से रिसेप्टर्स को, कॉर्टिकल्स,
इसके पास कुछ अपने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट किया, ठीक है, इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट किया और यहाँ पर क्या होगी, एक कॉर्टिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, ये पेरिफेरी पर होते हैं ओवम के, राइट। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को इन्होंने एक्टिवेट किया और यहाँ पर क्या होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। दीज कॉर्टिकल्स विल ब्रिंग द चेंजेस इन जोना पैलिसिडा। ये कॉर्टिकल्स क्या करेंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, cortical granules, these cortical granules will bring the changes in zona pellucida, ठीक है। these cortical granules will bring changes in zona pellucida, right। now what are these changes, अब क्या चेंजेस होंगे, जोना रिएक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी यहाँ पर, जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन। और इस जोना रिएक्शन में क्या होता है, जो जोना पैलिसिडा लेयर है ये अपनी अदर विंडोज को क्लोज कर लेती है, क्या कर लेती है, क्लोज कर लेती है। कैसे, जोना पैलिसिडा विल बिकम impermeable to other remaining sperms. She will allow only one sperm to fuse the zona pellucida and will shut down other doors, other windows to, and it become impermeable for the other remaining sperms. Okay, let's see here. Here, ओके यहाँ पर जैसे ही एक स्पर्म की सरफेस ने, एक स्पर्म की मेम्ब्रेन ने टच किया ओवम की मेम्ब्रेन को, जो अदर स्पर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट थे उनके लिए जोना पैलिसिडा ने अपनी जोना रिएक्शन की। कैसे की, अपने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट किया और ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या कर रहे हैं, जोना में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। उन चेंजेस की वजह से जोना रिएक्शन हो रही है और वो जोना रिएक्शन क्या कर रही है, यस और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स है वो क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, दे आर रिलीजिंग दी एंजाइम, विच एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम, ओके। सो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विल ब्रिंग चेंजेस इन द जोना पैलिसिडा। हाउ they will release lysosome एंजाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, जोना रिएक्शन हो रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जोना पैलिसिडा will impermeable to other remaining sperms. Okay, understood this much? जैसे ही स्पर्म की सरफेस ने, स्पर्म की मेम्ब्रेन ने टच किया ओवम की मेम्ब्रेन को, ओवम ने क्या किया, अपने कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट किया और उन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने लाइसोसोम एंजाइम को रिलीज किया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जोना रिएक्शन हो रहा है और जोना रिएक्शन में क्या हो रहा है, जोना पैलिसिडा इट बिकम impermeable to the other remaining sperms and it will alter and it will become impermeable to other remaining sperms. Understood? Okay, so here what happens, only one sperm will cross and it will really goes inside and all other windows will be closed. Okay, so now what sperm will do, now the sperm will enter inside the ovum with its tail and with its membrane, ठीक है। अब स्पर्म क्या करेंगे, यहाँ पे स्पर्म विल एंटर inside the ovum, this is ovum,
with 23 chromosomes, right? And यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो sperm है वो एंटर किया with its tail and with its membrane. Okay, it will leave its, and when it enters inside the ovum it will leave its membrane outside. ठीक है, अब जैसे ही ये एंटर करेगा it will leave the membrane outside, leave membrane outside. ठीक है, बट टेल इसके साथ ही अंदर एंटर करेगी. नाउ उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, द टेल विल डीजेनरेट. ठीक है, टेल डीजेनरेशन हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे ओवम को सिर्फ क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द स्पर्म. ठीक है, उसका अदर मटेरियल तो उसको नहीं चाहिए ओवम को फर्टिलाइज होने के लिए, सिर्फ क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए. तो पहले क्या होता है, वो अपनी मेम्ब्रेन को बाहर भेजता है, देन उसके बाद में उसकी जो टेल होती है, टेल विल डीजेनरेट. उसके बाद क्या हो जाएगा, टेल डीजेनरेट हो जाएगी. Tail will degenerate. Okay, now let's talk about the ovum का न्यूक्लियस. ठीक है, ओवम के न्यूक्लियस के बारे में हम बात करते हैं बिकॉज दिस इज द सेकेंडरी ओवम. क्योंकि जब ओव्यूलेशन हुआ था तब कौन सी स्टेज पर था, ये सेकेंडरी ओवम के स्टेज पर था. ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी ओवम एंड देयर इज 23 क्रोमोसोम्स बट एवरी क्रोमोसोम हैज़ द डबल थ्रेड. ओके, हर एक क्रोमोसोम के पास, ओवम के हर एक क्रोमोसोम के पास क्या है, डबल थ्रेड है. क्योंकि यहाँ पर जो सेल डिवीजन था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था. ठीक है, जबकि स्पर्म के पास जो क्रोमोसोम है, स्पर्म विल कम विद ओनली सिंगल कॉपी. जो भी क्रोमोसोम्स होंगे उसकी सिंगल कॉपी होगी. सो लेट मी ड्रॉ हियर. ये क्या है हमारा, फीमेल ओवम का क्रोमोसोम है, राइट, एंड दिस इज स्पर्म का क्रोमोसोम है. ठीक है, तो यहां पर क्या है, डबल कॉपी है. हियर इज द डबल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हियर इज द सिंगल कॉपी. ठीक है, क्योंकि 23 दोनों से आएगा तो ऑब्वियसली सिंगल कॉपी होना चाहिए, बट यहाँ पर सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या है, डबल कॉपी है. अब उसके लिए क्या होगा, ओवम इमीडिएटली विल कंप्लीट इट्स सेकेंड म्योटिक डिवीजन. इस स्टेज पर आकर के ओवम क्या करेगा, अपनी सेकेंड म्योटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा. ठीक है, सो immediately ovum will complete its second meiotic division. ओके, सेकेंड म्योटिक डिवीजन को ये कंप्लीट करेगा. नाउ हाउ द क्रोमोसोम्स विल सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रोमेयर्स. ऑलवेज जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ से सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमेयर से सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमेयर से ही अटैच्ड होते हैं. ठीक है, सो वन कॉपी विल केप्ट. अब जैसे ही सेकेंड म्योटिक डिवीजन होगा तो यहाँ पर जो ओवम का वन क्रोमोसोम की कॉपी है, it will kept all the cytoplasm and other cell organelles. ठीक है, one pair will go one side, one pair will separate with all the cytoplasm. ओके, एंड नेक्स्ट जो दूसरा जो कॉपी बचा है, ऑल साइटोप्लाज्म. ठीक है, ऑल साइटोप्लाज्म. और ये वाला जो है ये कहाँ जाएगा, ये क्या बनाएगा, इट विल हैव द लेस साइटोप्लाज्म एंड थ्रोन लेस साइटोप्लाज्म होगा. क्या होगा, लेस साइटोप्लाज्म होगा. ये स्मॉल सेल होगी और इट विल थ्रोन एज द पोलर बॉडी. ठीक है,
और ये पेरीवेटलिन स्पेस में जाकर के डीजेनरेट होता है विद कन्वर्टेड सेकेंडरी ओवम इनटू द डेफिनेट ओवम। ठीक है, ये क्या था, पूरा प्रोसेस था हमारा फर्टिलाइजेशन का, जिसमें हम क्या कर रहे थे, सेकेंडरी ओवम से डेफिनेट ओवम में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो देयर इज द कन्वर्जन फ्रॉम secondary ovum to definite ovum. Understood? So this is all about fertilization. Thank you very much.